We will be starting within a minute. Jai Hind, with immense pleasure and great honor, I, Dr. Nisha Rana, in charge IPR cell, Swami Vivekananda Bharati University, Meerut, and member AFTEFS Society, warmly welcome all distinguished dignitaries, eminent academicians, scientists, researchers, faculty members, students, industry experts, and participants from across the country to the Day 12 of Krishi Manthan, the 21 days summer school training program. The unique academic initiative is being jointly organized by Rani Lakshmi Bai Central Agriculture University Jhansi, University of Agriculture Sciences Raichur, Swami Vivekanand Subharti University Meerut, GD Goenka University Gurugram, Sant Girira Guru Vishwavidhyalaya, AFTEFS Society, and Vital Biotech Education Group, Kota, Rajasthan. This program has been started from 1st June and will be continued to 21st June 2026, focusing on agriculture, horticulture, forestry, sustainability, entrepreneurship, modern technology, and skill development. Now, moving forward, it's my privilege to welcome and introduce our speaker of technical session, Dr. Nilesh Shankar Rathore. So, Mr. Nilesh Shankar Rathore is a dedicated agriculture professional with over 21 years of extensive experience in agriculture department of Maharashtra. He is currently serving as district agriculture officer, Jilla Parishad Amravati, Maharashtra since July 2025. He holds a BSc agriculture degree and post-graduation diploma in agriculture extension management from Hyderabad, demonstrating academic excellency. He secured 31st rank in All India ICR entrance examination in 2003 in the subject of entomology. Mr. Rathod began his career in 2004 as a in Ragid district. After being selected through the Maharashtra Public Service Commission in 2009, he served in various capacities, including Circle Agriculture Officer and Agriculture Officer across Maharashtra. From 2022 to 2025, he worked as supply and value chain expert under the World Bank funded Balasaheb Thackeray Agribusiness and Rural Transformation Project, contributing significantly to the development of farmer produce organization. A passionate trainer and a resource person, he has completed more than 75 specialized training programs at premium national institutions such as Manage Hyderabad, NIPHM Hyderabad, NIAM Jaipur, CFTRI Mysore, and others. He has also imparted training to the agriculture officer, village level functionaries, input dealers, self-help groups, and thousands of farmers on topics including government agricultural scheme, FPO management, national organic farming, agricultural marketing, leadership, and rural livelihood development. Mr. Rathod has actively in numerous agricultural extension activities and public outreach initiatives through radio, television, seminar, exhibitions, and farmer training program. His contribution have earned him several recognition and certificate of appreciation from government department. Now, I would like to request Mr. Nilesh Shankar, please deliver his lecture. Thank you, madam, for my warm welcome and for a brief introduction. तो चूंकि हम हिंदी है हम Sir, sure. Because हाँ participants are also requested यस to यस pose a Hindi language, so you हिंदी can है continue हम your lecture. वतन है हिंदुस्तान हमारा तो चूंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में मेरी जानकारी साझा करूंगा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर स्वामी विवेकानंद शुभ्रति यूनिवर्सिटी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर एफटेप सोसाइटी और वाइटल बायोटेक इन सभी के संयुक्त रूप से आयोजित 21 दिन के इस कृषि मंथन समर स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी उपस्थित महानुभाव है उन सभी को मैं मेरा सादर प्रणाम सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र मेहता सर डॉक्टर दिनेश कुमार सर और जिन्होंने मेरा भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ निशा राणा मैडम इनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे साझा होने का आज का जो मेरा विषय है प्राकृतिक खेती भविष्य का जो आधार है तो इसका जो संदर्भ है हमारे पुराने समय में भी आता है प्राकृतिक खेती का जो संदर्भ है पुराना में जैसे अथर्ववेद में भूमि सूक्त है माता भूमि पुत्रो पृथिया यानी इसका अर्थ यह होता है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ
अथर्ववेद भूमि सूक्त विचार में यह भी लिखा गया है, इस मुट्ठी भर मिट्टी पर ही हमारा जीवन निर्भर है। यदि हम इसका संरक्षण करें तो हमें अन्न, ऊर्जा और निवारा प्राप्त होगा तथा आसपास सौंदर्य का निर्माण होगा। लेकिन यदि हम इस पर अत्याचार करेंगे तो यह मानव जाति को अपने साथ लेकर नष्ट हो जाएंगी। मिट्टी का महत्व अनमोल है। मिट्टी माँ की गोद में जीवन का सार बसता है। मिट्टी माँ की गोद में जीवन का सार बसता है। बिना जहर के हर दाना अमृत बनकर हंसता है। गोबर गोमूत्र से खेत फिर से हरियाली गाए। प्रकृति संग जो खेती करे सुख समृद्धि वो पाए। प्रकृति संग जो खेती करे सुख समृद्धि वो पाए। और ऐसी ही शाश्वत सुख और समृद्धि पाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। तो आइए चलिए आज हम इस सेशन में प्राकृतिक खेती के तरीके, उसके तत्व, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देशी गाय का महत्व, इस पर हम जानकारी साझा करते हैं। मित्रों, हमारी तीन माताएं हैं। तीनों की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिकाएं हैं। पहली जो हमारी माता है वो भू माता है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं और जो हमारी जीविका चलाती है। दूसरी जो हमारी माता है वह गाय है, जो हमें पूर्णान्न के रूप में दूध देती है। गाय का गोबर और गौमूत्र मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और तीसरी जो हमारी माता है, हमें जन्म देने वाली हमारी माँ, जो हमें पाल पोस कर अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर जिन्होंने हमें बड़ा किया है। तो इन तीनों माताओं के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। तो सभी से निवेदन है कि कृपया आप ताली बजाइए। आप वर्चुअल ताली भी बजा सकते हो। तो ये तीनों माताएं हमारे जीवन में विशेष रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो प्राकृतिक खेती में गाय का महत्व जो है वह अन्य साधारण है। अभी हम अगर हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, इसका अगर हम संदर्भ जोड़ते हैं प्राकृतिक खेती से, तो कुल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो प्राकृतिक खेती के संदर्भ में है। तो इस पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 नंबर का है, उसमें भूखमरी हमको समाप्त करनी पूरे विश्व में, जीरो हंगर करना है। तो रसायन मुक्त और पोषक अन्न उत्पादन यह लक्ष्य है। खाद्य सुरक्षा और पोषण में हमें सुधार करना है। तो यह प्राकृतिक खेती से स्वस्थ और सुरक्षित भोजन हमें मिल सकता है। दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो हम देख रहे हैं कि जहरीले रसायनों से हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि अगर हम कैंसर का प्रमाण देखते हैं तो दिन ब दिन वह बढ़ता जा रहा है। तो जहरीले रसायनों से हमें मुक्ति चाहिए और भोजन के माध्यम से रोगों में हमें कमी लाना है। तो सुरक्षित विष मुक्त और अन्न हमें प्राकृतिक खेती ही देती है। तीसरा, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और की अगर बढ़ते हैं तो वह 6 नंबर का है, जिसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसका संदर्भ है। हम देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों से हमारा जल जो है वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल का प्रदूषण। प्राकृतिक खेती जल स्रोतों की रक्षा करती है, तो यह भी संदर्भ उसमें आता है। अगला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 12 नंबर, तो इसमें हम देखते हैं कि जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग हमें लेना है। तो ये रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो हमारे स्थानीय संसाधन है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे देसी गाय, उसका गोबर है, गोमूत्र है, इससे हम जीवामृत बीजामृत बना सकते हैं और हमारी जो मिट्टी है उसको हम फिर से जीवित कर सकते हैं। तो हमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना है। उससे क्या होने वाला है कि हमारी लागत कम होने वाली है और हमारी बाहरी निर्भरता वो बहुत कम होने वाली है। और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली, जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन टेक्निक, उसे हमें बढ़ावा देना है। अगला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13 नंबर का, इसमें जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन को कहा गया है। तो कार्बन उत्सर्जन में प्राकृतिक खेती में निश्चित रूप से कमी आती है। कार्बन का हम सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, मिट्टी में कार्बन का संग्रह कर सकते हैं और उसके लिए जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज, इसके माध्यम से हम कार्बन का संग्रह कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी यह सहायक है। अगर अगला सस्टेनेबल गोल की तरफ हम बढ़ते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 आता है। उसमें स्थलीय जीवन, जो लैंड पर की जो जीव जंतु है, लाइफ है, उसका संदर्भ उसमें दिया हुआ है। और मिट्टी के उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उससे बढ़ती है। और जैव विविधता का संरक्षण जो है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो उसमें होता है। यह तो केवल प्राकृतिक खेती से ही संभव है।
इन कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से हम अगर देखें तो 6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो सीधे सीधे प्राकृतिक खेती के संदर्भ में उनका सीधा संबंध है। यानी प्राकृतिक खेती केवल खेती नहीं बल्कि यह सतत विकास का एक आधार है जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों को मजबूत करती है। अगर हम देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स की समिट है, जो 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये शुरुआत उनका एक ब्रिक्स स्थापन हुआ था। और उसका जो समिट है वो अभी इंदौर में चल रहा है, 9 से 13 तारीख तक, कल तक वो समिट है। और इस समिट में उनका जो मुख्य चर्चा का विषय है उसमें अभी 6 देश भी जुड़ गए हैं। अफ्रीका के कुछ देश है, युगांडा है, इथियोपिया है, देन इंडोनेशिया है, संयुक्त अरब अमीराती है, सऊदी अरेबिया है। यह देश उसमें जुड़ गए हैं, तो कुल 11 देश अभी ब्रिक्स में हो गए। वहाँ पे जो इंदौर में चर्चा चल रही है, उनका जो मुख्य विषय चर्चा का वो अन्न सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी। चूंकि हमारे देश की जो आबादी है लगभग 1.5 करोड़ हमारी आबादी है। ये सभी आबादी को हमें अच्छा, पौष्टिक और जहर मुक्त खाना हमें उनको देना है। और दूसरा जो है, हमें हवामान अनुकूल जो खेती है जिसे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसे हमें बढ़ावा देना है। तो ये ब्रिक्स समिट में भी अन्न सुरक्षा, हवामान अनुकूल खेती, तो ये काफी हद तक प्राकृतिक खेती से ही संभव है। और इसी महीने में जब से हमारा 1 जून से यह समर मंथन स्कूल चालू हुआ है, तो 7 जून को हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिन भी मनाया, जो हर साल मनाया जाता है। 2026 की इस साल की थीम थी कि खाद्य सुरक्षा विज्ञान क्रियान्वयन में, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो इसका यह उद्देश्य है कि जन जागरूकता बढ़ाना फूड सेफ्टी के बारे में, खाद्य जनित रोगों की रोकथाम करना और खेत से थाली तक हर स्टेक होल्डर को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि स्वस्थ खाद्य सभी को मिल सके। तो यह केवल और केवल प्राकृतिक खेती से ही हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, ब्रिक्स के जो हमारे उद्देश्य हो, या विश्व हम खाद्य दिवस की बात कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक खेती अर्थात में क्या है, ये भविष्य के कृषि का आधार है, वह कैसे हम जानेंगे अभी आगे की पार्ट में। बदलाव की आवश्यकता क्यों है, हम देख रहे हैं कि मृदा क्षरण जो है हवामान बदल की वजह से, और हरित क्रांति के बाद जो है, हरित क्रांति में हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा मात्रा में जो है रासायनिक खाद जो है, रासायनिक कीटनाशक है, उनका अत्यधिक उपयोग करने से हमारी मिट्टी की जो जैविक शक्ति है वो दिन ब दिन कम हुई है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हुए हैं। और हमें सॉइल साइंस में पढ़ाया गया है कि सॉइल इज ए लिविंग एंटिटी। और ये लिविंग एंटिटी का आज मौजूदा हाल ये हो रहा है कि जो सूक्ष्म जीव की संख्या पहले अब जो थी मिलियन में थी, बिलियन में थी, ये अब लाखों तक सीमित हो गई है। तो ये मृदा क्षरण हमारा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात है कि जल संकट जो है, जल संकट भारी मात्रा में, भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 7 जून को मानसून का पानी हमारे महाराष्ट्र में, ओवरऑल महाराष्ट्र में बारिश की शुरुआत मौसम की हो जाती थी। लेकिन आज हम 12 तारीख में फिर भी मानसून की जो बारिश है वो अभी तक आ ही नहीं है। किसान राह देख रहे हैं। यह जो 2026 साल है, ये अल नीनो का साल है। हमें पता है कि हमारे जो भारतीय मौसम हवामान विभाग है, उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि इस साल जो बारिश है वो 90% ही होने वाली है, 10% बारिश एवरेज से कम होने वाली है। तो ये सभी जो संकट है, जल संकट, भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है, कृषि में पानी की बढ़ती मांग है और सिंचाई में भारी लागत है। तो हमें जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं कि हर बूंद से अधिक फसल हमें चाहिए, तो इसको हमें बढ़ावा देना है। तीसरी बात यह है कि बदलाव की आवश्यकता में कि आर्थिक बोझ जो है, हम देख रहे हैं कि खेती की लागत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, वो दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। तो इसके कारण किसानों पर भारी कर्जा पड़ रहा है, उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। तो ये हम देखते हैं कि मृदा क्षरण हो, जल संकट हो और आर्थिक बोझ हो, तो ये तीनों का विकल्प, हमें एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए, न कि उससे संघर्ष करे। और इसी की वजह से ये प्राकृतिक खेती जो है, इन तीनों जो हमारी जो समस्या है, गंभीर समस्या है, उस पर, क्योंकि मृदा और जल जो है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका हमें संवर्धन करना चाहिए, जो कि प्राकृतिक खेती से संभव है। तो प्राकृतिक खेती क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो प्राकृतिक खेती के 4 तत्व है। प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षक है, यानी हमें पता है कि प्रकृति जो सिखाती है हमें, वह कोई नहीं सिखा सकता।
और प्रकृति ऐसा शिक्षक है जो हमें पहले पढ़ाता है, बाद में पहले परीक्षा लेता है, बाद में हमें हमसे उससे सीख मिलती है। जैसे हम अनुभव के बारे में बोलते हैं कि अनुभव ऐसा टीचर है जो हमें पहले सिखाता है, बाद में हमारी परीक्षा लेता है। बाकी केस में पहले हमें पढ़ाते हैं, बाद में परीक्षा होती है, लेकिन अनुभव और प्रकृति हमें पहले जो है सबक देती है, उससे हम सीखते हैं। तो प्राकृतिक खेती क्या है कि प्राकृतिक खेती में हमें जुताई नहीं करनी है। जो मिट्टी का जो प्राकृतिक ढांचा है उसको हमें बनाए रखना है, उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरी बात, जो खरपतवार है उसको पूरी तरह से हटाने की बजाय उनका हमें प्रबंधन करना है। उसको वहीं पे रख के उसको मिट्टी के ऊपर उसकी परत लगा के हमको लाइव मल्चिंग उसकी करना है, यानी हमें निराई नहीं करना है। तीसरा जो है कि रासायनिक उर्वरक जो है उसका हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे, मैंने जो शुरुआत में बताया कि जो हमारे बिलियन और मिलियन में हमारे सूक्ष्म जीव थे, आज वो लाखों पर आ गए। तो उसका केवल एक ही कारण कि हम जो रासायनिक जहर हमारी मिट्टी में डाल रहे हैं, उसके वजह से दिन ब दिन हमारी सूक्ष्म जीवों की संख्या लगातार घट रही है। और चौथा, हमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हमें प्राकृतिक खेती सिखाती है कि इनका हमें उपयोग नहीं करना है। अभी हम ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि नाम में है कि इसमें हमें लागत किसानों को जो है ज़ीरो आने वाली है, उसको कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी खेती किसान करेगा वो प्रकृति के आधार पर प्रकृति से ही लेकर करने वाला है, क्योंकि प्रकृति हमें भर भर कर देती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो सूर्य प्रकाश हो। ये सब हमें प्रकृति भर भर कर देती है। जो हमारे जो पौधा है, हमारा जो पीक है, उसका ये मुख्य आधार है, मुख्य स्तंभ है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसके जो मुख्य जनक है, जिन्होंने यह हमारे देश में चालू की, वो सुभाष पालेकर, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सौभाग्य से वह हमारे अमरावती जिले के, हमारे अमरावती नांदगांव खंडेश्वर तहसील के, और बेनोड़ा उनका गाँव है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके बारे में मैं यहाँ पे उनका जो प्रिंसिपल है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उनके जो 4 मुख्य स्तंभ है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, उसमें बीजामृत, जैसे अभी अमृत इसमें आया हुआ है, बीजामृत और जीवामृत में। हमने पुराणों में देखा है, हिंदू पुराने में, कि समुद्र मंथन हुआ था, या अमृत मंथन जिसे हम कहते हैं। एक प्रसिद्ध हमारी कथा है जिसमें इसका वर्णन विशेष रूप से भागवत पुराण या विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलता है। इनमें क्या हुआ था, देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा था, यानी घुमाया था। जो शेषनाग है उसको रस्सी, भगवान विष्णु जो है नीचे कुर्म के अवतार में नीचे थे, और उसे अलग अलग 14 रत्न निकले थे उस समुद्र मंथन से, जिनमें प्रमुख है अमृत कलश, अमरता का रस। सबसे पहले तो उसमें हलाल निकला था, आप सभी को पता है। जैसे भगवान शंकर ने उसे पीकर उन्हें हम नीलकंठ नाम से बोल, तो हलाल पहले निकला था, जो शंकर भगवान ने प्राशन किया। दूसरा जो निकला था वो अमृत कलश निकला निकला था, अमरता का रस। उसके बाद में कामधेनु गाय, यह भी हमने देखा है। महालक्ष्मी माता, चंद्रमा, वारुणी, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि, यह सब मंथन में, अपने समुद्र मंथन जो हुआ था, या अमृत मंथन जिसे हम बोलते हैं, उसमें निकला था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र मेहता सर, उनकी पूरी टीम ने जो है हमारे लिए कृषि मंथन 21 दिन का आयोजित किया है। और इसमें भी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करके, मंथन करके, जैसे उसमें से 14 रत्न निकले थे, इसमें से हमारे ये मंथन में से भी बहुत अच्छी अच्छी 21 दिन में 21 अच्छी, जो हम जिसे बोलते हैं कि दिव्य रत्न जैसे निकले थे हम समुद्र मंथन में, वैसे ही हमारे कृषि मंथन में भी अच्छी जानकारी सबको साझा होने वाली है। तो उसका हम विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। तो समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं, एक संदेश है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि धैर्य और परिश्रम से सफलता मिलती है। अच्छाई और बुराई दोनों मिलकर प्रयास करें तो भी फल मिलता है। और पहले कठिनाई आती है, जैसे पहले हलाल निकला था और बाद में जो है सफलता मिलती है, यानी अमृत मिलता है। तो यह जो है जो बीजामृत, अमृत, यानी मिट्टी का जो अमृत है और बीज का अमृत है, इसे असल ढंग से। तो इसमें जो अमृत वर्ड है, अमृत यानी जिसको पीकर हम जिंदा कर सकते हैं, यानी बी को हम, जो बीज है उसको हम जिंदा कर रहे हैं, मिट्टी को हम जिंदा कर रहे हैं, जो उसमें सूक्ष्म जीव है, जो हजारों करोड़ों संख्यों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं, उसे हम लाइव कर रहे हैं, उसको हम अमृत दे रहे हैं। तो ये जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा, ये मुख्य 4 स्तंभ है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, जिसके आधार पर ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग
हम कर सकते हैं। तो हम एक 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 से हम थोड़ा समझ लेते हैं बीजामृत क्या है। जैसे बीज उपचार, हम छोटे बच्चों को जैसे हम गर्भ में रहता है छोटे, हम गर्भ संस्कार देते हैं ताकि वो अच्छा आगे जाके अच्छा एक अच्छा नागरिक बन सके। उसी प्रकार बीज है हमारे महाराष्ट्र में जो संत हुए संत तुकाराम, उन्होंने लिखा हुआ है कि शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गुंठी। यानी अगर आपका बीज अगर शुद्ध है तो उससे जो उपज होने वाला है, पौधा हो, फल हो, सब्जी हो, तो वो भी शुद्ध होने वाला है। उस पर कोई कीट या कोई फंगस फफूंद वो उस पर अटैक नहीं करने वाली। तो शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। तो उसी प्रकार से हमें बीज पर उपचार करनी चाहिए। तो ये बोई से पहले हमें बीजों को जो गाय के गोबर और मूत्र के मिश्रण से इसको संस्कारित करना है। तो ये बनाने की विधि जो है बीजामृत की हम समझ लेते हैं। बीजामृत के लिए हमें पानी 20 लीटर लेना है। बाद में देसी गाय का गोबर, इसमें एक बात यह है कि हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करनी हो या प्राकृतिक खेती करनी हो या सेंद्रीय खेती करनी हो, तो इसमें जो देसी गाय है हमारी वो बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देसी गाय होना जरूरी है। तो देसी गाय का गोबर जो है 5 किलो लेना है। देसी गाय का मूत्र जो है जिसे हम गोमूत्र कहते हैं वो 5 लीटर लेना है। स्लेक लाइम जिसे हम चूना कहते हैं वो 50 ग्राम लेना है। तो यहाँ पे ज्यादा चूना नहीं लगाना है हमको, 50 ग्राम ही चूना लगाना है। और बरगद के पेड़ या खेत की मिट्टी जो है मुट्ठी भर मिट्टी हमें उसमें मिलानी है। तो ये सबको हमें एक साथ मिलाना है। और इसे मिलाने के बाद में दिन में 2 बार जो है लकड़ी से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में हमें घुमाना है। और यह मिश्रण 24 घंटे के लिए हमें रखना है। और 24 घंटे के बाद हम इसका उपयोग जो है बीज प्रक्रिया यानी जो बीज संस्कार जो है हम बोलते हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो तैयार होने वाला है बीजामृत, ये हम 100 किलो बीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बीजामृत हो गया। जीवामृत को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे ये जीव का अमृत है, इसे हमें मिट्टी में डालना है। उसे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव लाभकारी सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। और उसके बाद में आच्छादन है, नमी संरक्षण। तो हमें पता है कि जो मिट्टी की संरचना है या मिट्टी का संगठन है वो 4 प्रकार के तैयार होता है संगठन मिट्टी का। उसमें 25% पानी रहता है, 25% उसमें हवा रहती है, 45% उसमें मिनरल मैटम रहते हैं जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ है, लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये 45% रहते हैं। और 5% जो है वो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। तो ये ऐसे बना के हमारी मिट्टी होती है। तो ये आच्छादन जो है वो नमी हमें हमारी मिट्टी को नमी देता है। और वापसा जो कंडीशन है जिसमें वायु और नमी का संतुलन जो अभी मैंने बताया कि 25% पानी और 25% हवा जब रहती है तब वो मिट्टी हवा पानी के कारण सही उसमें 50-50 संतुलन अगर बनाया है तो वह पेड़ के लिए, पौधे के लिए, उसकी उपज के लिए और उत्पाद के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो इसका हमें उपयोग करना है। बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वापसा स्थिति में हमें हमारी बुआई करनी है। तो ये जीवामृत थोड़ा सा हम क्योंकि ये जीव का अमृत है और ये एक सूक्ष्म जैविक चमत्कार है, तो कैसे चमत्कार होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जीवामृत कोई उर्वरक नहीं है, कोई खाद नहीं है, यह एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक यानी एंजाइम जिसे हम कहते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, वो जो कैटलिस्ट जिसे हम बोलते हैं वो ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का रेट को, गति को बढ़ा देता है, लेकिन खुद स्थायी रूप से खर्च नहीं होता। तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये जीवामृत जो है देसी गाय के गोबर और मूत्र में मौजूद जो लाभकारी एरोबिक और अनएरोबिक जो बैक्टीरिया रहते हैं इसके मूल में है। और इसके लिए गुड़ और बेसन के माध्यम से, क्योंकि चूंकि गुड़ और बेसन जो है वो उससे प्रोटीन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है बैक्टीरिया को, और उनकी संख्या जो है वो बहुत गुना बढ़ जाती है। ये उनका खाद है गुड़ और बेसन। तो उसके माध्यम से 48 घंटे में हम बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में गुना होते हैं। तो यह मिट्टी में मौजूद जो अघुलनशील पोषक तत्व है जैसे फास्फोरस है, पोटैश है, आयरन है, जिंक है, ये जो अघुलनशील पोषक तत्व है ये तोड़कर पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। तो यह इतना असरदार हमारा जीवामृत बनाने की विधि को हम देख लेते हैं। तो ये नाम के जैसा जीवामृत जो है जीवन का जो जीव है उनका अमृत है। तो उसके लिए हमें 200 लीटर पानी लेना है एक ड्रम में। उसके बाद देसी गाय का गोबर हमें 100 किलो गोबर लेना, माफ कीजिए 10 किलो गोबर लेना है। देशी गाय का मूत्र जो है तो वो 10 लीटर लेना है। गुड़ 2 किलो लेना है जो ऊर्जा का स्रोत है।
जो सूक्ष्म जीव है हमारे उसके लिए। और दाल का आटा जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, 2 किलो लेना है। और जंगल की मिट्टी, बरगद के पेड़ की नीचे की अगर मिट्टी मिलती है तो वो बहुत अच्छी है। तो एक मुट्ठी हमें मिट्टी जो है वो उसमें वो पूरे ड्रम में मिलाना है। ये सभी जो अभी सामग्री बताई वो ड्रम में डालकर उसको हमें मिलाना है अच्छी तरह से। और दिन में उसे 2 बार घड़ी की दिशा में हमें घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यह जो घोल है हमें 9 से 12 दिन तक उसको फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन प्रक्रिया के लिए रख देना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे ये स्लाइड में देख रहे हो कि 10वें दिन जो है वो सूक्ष्म जीवों की जो पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं, जनसंख्या, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, वो उच्चतम स्तर पर रहती है। उसकी जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया 20.4 इंटू 10⁵ में बढ़ते हैं। कवक जो इसको हम बोलते हैं फंगाई या फफूंद बोलते हैं, तो वो 13.8 इंटू 10⁻³ में बढ़ती है। फॉस्फेट जो है घुलनशील, वो 4.5 इंटू 10⁻² में बढ़ती है। और नाइट्रोजन फिक्सर जो है जिसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, तो ये जो हमारे जीवाणु है ये 5 से 10⁻² इस मात्रा में बढ़ते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने ये शोध लगा के प्रमाणित किया है कि 10वें दिन लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि 10वें दिन जो है हमें ये जीवामृत का जो है ये यूज करना चाहिए हमें। उसके बाद में आता है आच्छादन, मल्चिंग जिसे हम बोलते हैं। तो यह मिट्टी का सुरक्षा कवच है। जैसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट यूज करते हो गोली से बचने के लिए या दुश्मन की गोली से बचने के लिए, वैसे ही मिट्टी का जो सुरक्षा कवच है। अभी मिट्टी को जो है हाई टेम्परेचर, अभी हम देख रहे हैं कि निनो की वजह से टेम्परेचर में काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और बारिश भी नहीं हुई है। तो इसकी वजह से जो है हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो हमारे मर जाते हैं। तो इसकी वजह से ये मिट्टी का सुरक्षा कवच जो है मल्चिंग, जिसे हम लाइव मल्चिंग बोलते हैं, वो हम सूखी पुआल जो है हमारे जो भी स्टबल्स है, स्ट्रॉ है, उसका हम यूज कर सकते हैं। पैडी का हो या तूर अरहर का हो, कपास का हो, इन किसी का भी पौधे का हम यूज कर सकते हैं। बाद में जो भी पौधे हैं, जो भी पेड़, उनके पत्तियों का कचरा भी हम हमारे खेत में उसकी परत बना के कर सकते हैं, जिसे हम मल्चिंग बोलते हैं। और जो हरी खाद है या अजोला है उसका भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी नेचुरल मल्च है या लाइव मल्च जिसे हम बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि नमी का जो संरक्षण है, जिसे हम मॉइस्चर कंजर्वेशन बोलते हैं, तो वो बाष्पीकरण को रोककर 60 से 80% तक नमी बरकरार रखता है। उसके वजह से हमारे मिट्टी में जो है वापसा स्थिति जो हमने देखा है, चौथा स्तंभ, वो मेंटेन रहती है। दूसरा जो इसका फायदा यह है कि खरपतवार जो है हमारे खेत में आते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स है, तो उसकी पैदावार जो है या उसकी जो बढ़ने की उसका रेशियो है वो 60 to 70% तक घट सकता है, यानी घटता है। तो खरपतवार नियंत्रण में ये काफी मल्चिंग जो है काफी कारागार सिद्ध हुई है। उसके बाद हम इसको जो टेम्परेचर, मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर को, हम तापमान को मिट्टी को 20% तक हम कम करके सूक्ष्म जीवों को बचाते हैं इसमें। और जो अहम मुद्दा है इसमें मल्चिंग का, वो हम कार्बन का स्टेशन करके उसका संग्रह करके मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें हम काफी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। और वह जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो मिट्टी को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। और जो ह्यूमस एक ज्यादा से ज्यादा मिट्टी होंगी उसमें सारे जो पौष्टिक तत्व है पौधे के लिए जो आवश्यक है, 17 विभिन्न प्रकार के, वो हम प्लांट को उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार हमें मल्चिंग जो है हम मिट्टी का सुरक्षा कवच हमें प्रदान करता है। उसके बाद जो है ये महासंयोजन है जीवामृत और मल्चिंग का। तो ये महासंयोजन इसीलिए है कि मल्चिंग जो है उस पर हम जीवामृत का छिड़काव करते हैं। तो इसके वजह से क्या होने वाला है कि मिट्टी पर एक सुरक्षात्मक छाया जो है और नमी का निर्माण होने वाला है। उसकी वजह से पौधे को लगने वाली जो नमी है और छाया है वो मिलने वाली है, उससे उसकी जो बढ़ोतरी है, उसकी जो प्लांट ग्रोथ वो अच्छे से होने वाली है। दूसरा, यह एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर हम मल्चिंग के साथ जीवामृत यूज करते हैं तो सूक्ष्म जीवों को तेजी से पनपने में ये मदद करता है, यानी उसकी जो संख्या है वो काफी मात्रा में काफी हद तक बढ़ जाती है। तीसरा जो इसमें है, जो सक्रिय सूक्ष्म जीव है, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है मिट्टी में, हमने देखा कि बिलियंस या मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिशियल टू प्लांट है। तो यह सक्रिय सूक्ष्मजीव मल्च को तेजी से सड़ाकर पौधे के लिए पोषक तत्वों में बदलते हैं। और चौथा जो इसका मुख्य उपयोग है, तो जैविक गतिविधि से केंचुए वापस आते हैं हमारे मिट्टी में, और जिससे मिट्टी छिद्रपूर्ण हो जाती है।
मान के चलो हमारे मिट्टियों में केंचुए की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो जमीन में हमारे जो हवा है, पानी है, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, एरेशन है, ये सही अच्छे तरीके से होता है, सही ढंग से होता है, और पौधे का हमारा विकास अच्छा होकर हमें अच्छा उत्पाद वहाँ पे मिलता है। तो ये मल्चिंग के बिना जीवामृत यह अधूरा है, इसलिए यह इसको संयोजन हमने बोला है। अगर हम बात करते हैं तुलनात्मक विश्लेषण अगर हम करते हैं 5 पैरामीटर में, तो रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती में हमें यह समझ में आएगा कि जो डिफरेंसेस है 5 पैरामीटर पर आधार पर, तो इनपुट अगर लागत हम देखते हैं जो खर्चा खेती में होने वाला है, तो ये रासायनिक खेती बाजार पर निर्भर है। जैसे बाजार में अभी रासायनिक खाद की, बीज की कीमतें बढ़ रही है और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है और अत्यधिक महंगी होती जा रही है। ये रासायनिक खेती में हम देख रहे हैं। चूंकि प्राकृतिक खेती में हम देखते हैं कि यहाँ पे शून्य और न्यूनतम जो है वो लागत लगने वाली है, जिसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलने वाले हैं। कुछ लागत इसमें नहीं लगानी है हमें, और खेत के संसाधनों पर ही आधारित यह खेती है, जो प्राकृतिक खेती है। दूसरा हम पैरामीटर मृदा स्वास्थ्य का देखते हैं, तो रासायनिक खेती की वजह से लगातार जो है सॉइल का इरोजन और वाटर का इरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। उसका जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज है वो काफी मात्रा में घटते जा रही है दिन ब दिन, और रसायन का जमाव मिट्टी की परत पर जो तैयार होके वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ के जो माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाइना है, उस पर वो असर कर रहा है। तो ये मृदा स्वास्थ्य में हमारा दिन ब दिन रासायनिक खेती की वजह से हमारी मिट्टी जो है वो आईसीयू में है, क्योंकि उसे अगर हम बाहर लाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसके वजह से हमें ह्यूमस और कार्बन में वृद्धि होने वाली है प्राकृतिक खेती की वजह से, और मिट्टी का सही मायने में जो पुनर्जीवन जिसे बोलते हैं रिन्यूएशन, वह होने वाला है। तीसरा पैरामीटर अगर हम देखते हैं जल उपयोग का, तो रासायनिक खेती में चूंकि हम रासायनिक खाद डालते हैं, उसमें काफी पैमाने में पानी की आवश्यकता होती है। वो रासायनिक खाद घुल के वो क्रॉप तक अवेलेबल हो उसके लिए, तो इसमें अत्यधिक आवश्यकता है सिंचाई की। लेकिन हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, अभी हमने जैसे देखा कि मल्चिंग के कारण हम 60 से 80% तक पानी की बचत कर सकते हैं। तो जल का उपयोग भी सही ढंग से जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हम बोलते हैं, तो वो प्राकृतिक खेती में होता है। पर्यावरण का अगर हम पैरामीटर देखते हैं, तो ये रासायनिक खेती की वजह से हमारा जो जैव विविधता है उसका दिन ब दिन विनाश होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जीव जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे पृथ्वी से नामशेष हो गए, और जल प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो अभी हम देख रहे हैं कि अभी बारिश का जो एल नीनो की वजह से जो बारिश अभी आ नहीं रही है, तो उसी का कारण जो है कि जैव विविधता का विनाश हो गया है। हमारे यहाँ पे जंगल तोड़ हुई है, अर्बनाइजेशन हो गया है, फैक्ट्रीज बढ़ गई है, एसिड्स की संख्या बढ़ गई है, और इसी का सभी का परिणाम क्या हुआ है कि हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसी की वजह से हमारा जो जल चक्र है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो प्राकृतिक खेती में क्या है कि एक पारिस्थितिक संतुलन है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस ये करके रखता है। जैसे कि मधुमक्खियाँ हमारे पैरासाइट है, प्रिडाटर है, वो हमारे जो शत्रु कीटक है उनको वो कंट्रोल करके एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। और पर्यावरण में जो भी जीव जंतु है, जितने भी स्पीसीज है, उनका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वो करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि लाभप्रदता के बारे में, तो और उनका उच्च जोखिम है रासायनिक खेती में, और यहाँ पे लागत घटने से शुद्ध आय में 3 साल के बाद में बहुत ज्यादा परिणाम इन पर वृद्धि होने वाली है, और वो सतत निरंतर रहने वाली है, सस्टेनेबल रहने वाली है। तो ये हमने देखा। तो प्राकृतिक खेती जो है उसकी जो शुरुआत हुई है, तो एक तिनके से उपजी महान क्रांति। हमने पढ़ा है कि वन स्टॉ रिवॉल्यूशन, एक तिनके से जो महान क्रांति हुई है, जापान के जो शास्त्रज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, मसानोबो फुकुओका, तो उन्होंने ये वन स्टॉ रिवॉल्यूशन बुक भी उनकी लिखी हुई है। तो स्वस्थ कल के लिए टिकाऊ और शून्य लागत कृषि की यह संपूर्ण मार्गदर्शिका हम समझ लेते हैं कैसे है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जापान की प्रेरणा जो मासानोबु फुकुओका है, जिन्हें हम वन स्टोर रिवॉल्यूशन के फादर बोलते हैं, और उनका ये कहना है कि उनका ये प्रिंसिपल है कि डू नथिंग, हमें खेती में कुछ नहीं करना है, जो भी करने वाली है वो प्रकृति करने वाली है। तो हमें प्रकृति को जीतने की बजाय उसके साथ मिलकर हमें काम करना है, ये हमें मासानोबु फुकुओका बोलते हैं। और दूसरे हमारे जो महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर जी है, तो उन्होंने भारत की मिट्टी का ज्ञान अर्जित करके जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, यह मॉडल उन्होंने संशोधित किया है। और पूरे भारत भर उनका मॉडल जो है, अलग अलग जो राज्य है जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रगत राज्य है, तो सभी वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अवलंब कर रहे हैं, जिसमें हम स्थानीय संसाधनों
और देसी गाय पर आधारित आत्मनिर्भर मॉडल। अभी हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, तो हमें हमारे खुद के पैर पर हम जैसे खड़े हो रहे हैं वैसे हमें किसानों को भी करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और अगर उन्हें सही मायने में उनको हम आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो हमें प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये मूल मंत्र यही है कि खेती एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, ये आर्टिफिशियल कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक जीवंत परिस्थिति तंत्र है, लाइव लिविंग इकोसिस्टम है जो निर्माण करती है। तो प्राकृतिक खेती के 4 मूलभूत स्तंभ जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे। तो इस स्लाइड में जो है बिना जुताई नहीं करनी है, हमें मिट्टी की संरचना को कम से कम हमें उसको डिस्टर्ब करना है, जो कि मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव और केंचुए खुद जुताई करते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है हमें बिना रासायनिक खाद जो है अपनी मिट्टी की उर्वरता स्वयं बनाए रखनी है। जो भी हमारे बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खाद है, सेंद्रीय खाद है, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। बिना निराई खरपतवार नाशक जो है हमें जो खरपतवार है उनको हमें खत्म नहीं करना है, उनकी कटिंग करके उसको जमीन में डालना है, उसको मल्चिंग करनी है। अभी हमने मल्चिंग के फायदे भी देखे। और बिना कीटनाशक जो है हमें हमारा जो फसल है पौधा है वो लेनी है। जो भी पर्यावरण में एक इकोसिस्टम काम करती है, जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव दूसरे जीव का आधार है, वह दूसरे पर निर्भर है। तो ये सिस्टम से ही हमारे नेचर में जो है, हमारे पर्यावरण में जो है एक पारिस्थितिक संतुलन रहता है, जिसे हम नेचुरल और इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। और यह फूड चेन की वजह से होता है, खाद्य श्रृंखला की वजह से होता है। तो ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इसमें अंतर क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर अलग अलग पैरामीटर के आधार पर हमने देखा। वैसे ही जैविक खेती हम किसे कहते हैं और प्राकृतिक खेती हम किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल। तो ये चार इस पर जो पैरामीटर है इस पर हम देखेंगे। बाहरी इनपुट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भारी मात्रा में हम बाहरी इनपुट जो है जैसे कंपोस्ट है, लेकिन केमिकल नहीं डालना है, ओनली हमें ऑर्गेनिक डालना है। कंपोस्ट खाद हो या बीडी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट या नेडेप कंपोस्ट। जो नेडेप है ये हमारे पुसद, मेरा जो गांव है मूल गांव यवतमाल जिले में पुसद करके, ये नेडेप टेक्नोलॉजी की वही वही की है। नेडेप बोले तो नारायण देवराव पांडरी पांडे, NA फॉर नारायण, D फॉर देवराव, P फॉर पांडरी पांडे, ये उनका पूरा नाम है। उनके अध्यक्षर से वो नेडेप टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ पे विकसित किए। ये कंपोस्ट खाद बनाने की एक अलग तरह की सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें काफी अच्छी मात्रा में और कम समय में हम अच्छा जो कंपोस्ट है वो तैयार कर सकते हैं। तो पूरे भारत भर में ये नैडो कंपोस्ट फेमस है। तो ये नैडो हो तो वो हम बाहरी इनपुट हम डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक रहनी चाहिए। लेकिन प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें 1 रुपये का भी हमें बाहरी इनपुट लाना नहीं है। जो कुछ भी बनाना है हमें ऑन फार्म बनाना है, जिसे हम बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ही हमें यूज करना है। दूसरी बात हम देखते थे जुताई के बारे में, तो जैविक खेती में गहरी जुताई और निराई आवश्यक है। तो प्राकृतिक खेती में हमें मिट्टी की सतह पर सूक्ष्मजीव द्वारा प्राकृतिक अपघटन करना है, और जो भी काम करेंगे वो सूक्ष्मजीव करेंगे, वही उसकी जुताई करेंगे, वही उसकी निराई करेंगे। तो ये है। अगर लागत की बात हम देखते हैं तो जैविक खेती में अधिक खर्चीली है, क्योंकि हम बाहर से पैसे खर्च करके वहाँ पे जो भी इनपुट है हम डाल रहे हैं, जैसे मेहंदी खाद हो, लेबर हो, तो इसका खर्चा ज़्यादा है। और शून्य बजट में, जैसे नाम में उसको शून्य बजट है, तो इसमें लागत पर हमें कोई खर्चा नहीं करना है। और प्रमाणीकरण पर की हम बात करें तो कड़े नियम है, महंगे सर्टिफिकेट है, 3 साल की प्रोसेस है जैविक के लिए। 3 साल के बाद में वह खेत जो है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड होता है। और प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं तो यह नियमों से मुक्त है और प्रकृति के अनुकूल है। तो खेत का हृदय जो है ये हमारी स्वदेशी देसी गाय है। तो हमें पता है, जैसे समुद्र मंथन में हम देखा कि कामधेनु गाय, जो भी हम इच्छा करें वो तुरंत ला के देने वाली गाय। तो ये जो गाय है हमारी स्वदेशी देसी गाय, इसमें एक देसी गाय में 30 एकड़ भूमि का हम पोषण कर सकते हैं। और ये जो संकल्पना है, ये जो विधान है, हमारे सुभाष जी पालेकर ने उन्होंने संशोधित करके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक देसी गाय के आधार पर हम 30 एकड़ भूमि का अच्छी तरह से पोषण करके हम अच्छी फसल वहाँ पे उपज कर सकते हैं, उसकी अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। तो देसी गाय में उसका गोबर और गौमूत्र, जो ये 2 घटक है, वे काफी महत्वपूर्ण है हमारी नेचुरल फार्मिंग में।
और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, दोनों में, प्राकृतिक खेती में। तो गोबर में करोड़ों लाभकारी सूक्ष्मजीव, जैसे पहले मैंने बताया, करोड़ों लाभकारी सूक्ष्मजीव रहते हैं, खनिजों का खजाना है और मिट्टी को पुनर्जीवित करने का यह मुख्य स्रोत है। और गौमूत्र में हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक कीटनाशक, फफूंदनाशक है, जिसे हम नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क बना सकते हैं और ये हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आर्थिक आधार की हम बात करते हैं तो किसान को बाजार से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होने वाला है वो केवल एक देसी गाय के भरोसे पर ही सब होने वाला है। देसी गाय हमारी चलता फिरता फर्टिलाइजर कारखाना यहाँ पे होने वाली है। तो ये खेत का हमारा जो हार्ट, जिसे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ फार्म या फार्मिंग, तो वो स्वदेशी देसी हमारी गाय है। तो ये विज्ञान में भी प्रमाणित किया है कि विदेशी जो नस्लें है, जर्सी है, होस्टेन फ्रिजियन है, उसकी तुलना में अगर हम हमारी देसी गाय, जो भी देसी गाय हमारी साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, जो भी हमारी देसी नस्लें है, वो काफी पैमाने में उनके जिनकी मात्रा हो, सूक्ष्मजीवों की संख्या हो, ये काफी पैमाने में ज्यादा है। अब अगर देसी गाय की हम बात करते हैं तो देसी गाय के गोबर में 84% अधिक जिंक होता है, जो भारतीय मिट्टी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये जिंक क्या करता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट तैयार करने में इसकी आवश्यकता होती है, वो मदद करता है। उसके बाद में जो फल और फूल लगते हैं वो जिंक की वजह से उसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो जिंक है वो 84% ज़्यादा होता है देशी गाय के गोबर में। और अगर हम गोबर की बात करते हैं कि देशी गाय के गोबर में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम है, सुडोमोनास है, ये काफ़ी अधिक संख्या में हमें पाए मिलते हैं। और विदेशी नस्लों की बात करें तो उसमें यह संख्या आधी ही होती है। तो देसी गाय का गोबर जो है केवल एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश नहीं है, तो यह मिट्टी को जीवित करने वाला अमृत है। जैसे हमने बताया कि यह जीव को फिर से जीवदान देने वाला अमृत है। तो जीवामृत जो है मिट्टी में जीवन फूकने वाला जादुई अमृत है। उससे क्या होता है कि मुझे ये एक माइक्रोबियल कल्चर, ये खाद नहीं है, पहले ही मैंने बताया कि एक माइक्रोबियल कल्चर है जो पौधों का विकास करता है। पीएच जो है, जो मिट्टी का पीएच है, जो अम्लीय और क्षारीय जो बैलेंस रहना चाहिए, तो यह उसे मेंटेन करता है, न्यूट्रल पीएच रखता है, यानी 7 पीएच पर हमारी मिट्टी काम करती है, जिसकी वजह से जो भी मिट्टी में पोषक तत्व है वो पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और यह बीमारी से बचाव भी करने में मदद करता है। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी रहती है, वैसे ही पौधों की इम्यूनिटी यह बढ़ाता है। तो ये जीवामृत बनाने की विधि जो है हमने पिछले स्लाइड में देखी है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम ले लेते। जीवामृत बनाने की विधि और उपयोग के लिए हमें 200 लीटर पानी लेना है एक ड्रम में। उसके बाद 100 किलो देसी गाय का गोबर हमें लेना है। 10 लीटर हमें गोमूत्र लेना है। 2 किलो गुड़, जो कि उसका खाद है, उसे प्रोटीन मिलने वाला है। ये उनका जो एनर्जी प्रदान करने वाला है 2 किलो गुड़। और 2 किलो बेसन या दाल का आटा जो है वो उसे प्रोटीन, जो बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया, उसको प्रोटीन प्रदान करने वाला है। और एक मुट्ठी जो मिट्टी है खेत की, वो हमें लेनी है। बरगद के पेड़ के नीचे की हो या बांध पर की हो तो काफी अच्छी मिट्टी रहेंगी वो। ऐसा हमें सब जो है एक ड्रम में मिक्स करके उसे हमें 48 घंटे के लिए छाया में रखना है। और दिन में उसे 2 बार हमें 10 मिनट के लिए लकड़ी से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। और इसका जो उपयोग है, हम 7 से 10 दिन में सिंचाई, जैसे हमने देखा कि 10वें दिन जो है काफी बड़ी मात्रा में इसमें जो है बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो 10वें दिन हमें ये सिंचाई के पानी के साथ 5 से 10% जीवामृत का हम छिड़काव कर सकते हैं। या इसको हम पत्तों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, मिट्टी से भी हम दे सकते हैं। तो यह मिट्टी का सुरक्षा कवच है, आच्छादन। जैसे हमने बताया कि खाली मिट्टी अपना सब कुछ खो देती है, क्योंकि खाली अगर मिट्टी रहती है तो वो हवा के साथ में उसका विंड इरोजन होगा, वाटर के साथ में उसका वाटर इरोजन होगा। और वो मिट्टी जो है, हम सबको पता है कि 1 इंच का मिट्टी का जो थर है, लेयर है, उसको तैयार होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। और वो उसमें वो 1 इंच की मिट्टी में ही सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वही बड़ी पैमाने में वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। अगर वो हवा के साथ और पानी के साथ बह के चली गई तो ये हम सब कुछ खो देते। जो ये यहाँ पे विधान लिखा हुआ है कि खाली मिट्टी अपना सब कुछ खो देती है, नमी, पोषक तत्व और जीवन, और आच्छादन उसे बचाता है। इसके लिए हमें जमीन पर जो है 365 डेज, पूरे 365 दिन हमें कुछ ना कुछ हमें आच्छादन रखना है। उसके वजह से नमी का संरक्षण होगा, खरपतवार का काफी अच्छे तरीके से नियंत्रण होने वाला है। और जो सजीव स्पंज है, सूक्ष्मजीव और केंचुए, उनका काम करके हमारे जमीन में एक फेवरेबल कंडीशन
तैयार कर सकते हैं। तो हमने ये पहले की स्लाइड में भी देखा कि आच्छादन और वो हमारा जो जीवामृत है वो कैसे एक संयोजन है, उनका परफेक्ट कैसे पार्टनरशिप है और कैसे वो काम करता है। तो ये एक असीमित उर्वरता मिट्टी को पैदा करती है और उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो काफी पैमाने में बढ़ाती है, जिससे हम कुछ खाद दाने मिलाई अच्छी फसल वहां पे ले सकते हैं। तो ये स्मार्ट बुवाई हमें करने के लिए पहले जैसे हम बोलते हैं कि बीज की गोलियां हमें बनानी है। जैसे अभी बारिश आएंगी उसके पहले हमें बीज की गोलियां बनानी है। और जब जुताई के सीधे बीज बोने के फूकों का यह जादू की तरीका है। इसके वजह से हम जो है जो पंछी है, पक्षी है, चूहे है, उनसे बीज का बचाव कर सकते हैं। मिट्टी के आवरण की वजह से सड़न से सुरक्षा कर सकते हैं। अगर भारी बारिश गिरती है तो बीज हमारे सड़ जाते हैं, हमें जो प्लांट पॉपुलेशन चाहिए वो नहीं मिलती है और बुआई भी इससे आसान हो जाती है। तो ये इसके लाभ है। तो हमें जो क्ले पैलेट है वो तैयार करके हमें बुआई करनी चाहिए। कीट प्रबंधन जो है ये शत्रु नहीं, प्रकृति के संतुलन को समझे। तो जो भी कीट है जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि नेचर में एक इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है, पारिस्थितिक संतुलन जिसे हम बोलते हैं। एक जीव दूसरे जीव का आधार है, दूसरे जीव का खाद्य है, वह उसको खाकर जिंदा रहता है, उसको दूसरा जीव खाने वाला रहता है। तो ये जो फूड चेन है जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, इसी की वजह से हमारे प्रकृति में एक संतुलन यहाँ बनाए रखता है। तो जो कीट है जिसे हम रासायनिक फवारनी करके, रासायनिक कीटनाशक की फवारनी करके उसे हम मारते हैं, तो उसके साथ में भी जो हमारे यूजफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट है, काफी सारे इंसेक्ट जो है उसमें मधुमक्खी है, लाख इंसेक्ट है, देन सेरिकल्चर, अपना सेरिकल्चर है, बॉम्बेक्स मोरा है। तो ये सभी उसके साथ जो है, और जो पैरासाइट और प्रेडाटर है जो हमारे नेचर में बहुत बड़े पैमाने पर है, जो हमारे किसानों के लिए वो सोल्जर है और उनका काम कर रहे हैं। तो ये उससे जो है कीट प्रबंधन ये शत्रु नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रकृति का एक संतुलन करने वाला घटक है, इसे हमें समझना चाहिए। आगे हम उदाहरण देखते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती की ओर जो है 5 चरणीय शुरुआती मार्गदर्शिका। पहला जो चरण है, हमें मिट्टी से जुड़ना है। जैसे अभी सेव द सॉइल कैंपेन चल रहा है पूरी इंडिया में, कि जो मिट्टी को है हमें बचाना है, क्योंकि मिट्टी ही जीवन का आधार है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे मिट्टी भी जीवन का आधार है। तो मिट्टी को हमें मृत धूल नहीं, एक सजीव परिस्थिति के तंत्र हमें बनाना है। जैसे मैंने पहले बोला कि सॉइल इज ए लिविंग एंटिटी, वह जिंदा है। फिलहाल वो आईसीयू में है, तो हमें आईसीयू से बाहर निकाल कर मिट्टी की गोद में रखकर उसे हमें सहेजना है। तो ये स्टेप 1 है, हमें मिट्टी से जुड़ना है। स्टेप 2 में हमें रसायनों को हटाना है। जो भी हम यूरिया, डीएपी, अलग अलग प्रकार के खाद जमीन में डालते हैं, तो उसकी बजाय हमें जीवामृत जैसे इनपुट हमें अपनाने है। ये स्टेप 2 में हमें करना है। अगर तीसरे चरण के हम अगर बढ़ते हैं तो हमें मिट्टी को ढकना है, मल्चिंग करना है। चौथे चरण में हमें फसल विविधता करनी है। तो इसका फायदा, मुनाफा जो है, या इसका जो बेनिफिट है फार्मर को, तो इसमें हम देखते हैं कि फसल विविधता में अलग अलग मिक्स क्रॉपिंग आती है, इंटर क्रॉपिंग आती है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग आती है। तो इसकी वजह से क्या होने लगा है कि अगर मुख्य फसल जो है किसान की कुछ कारणवश उसे अच्छा जो ये उत्पादन नहीं मिलता है, तो जो सेकेंडरी क्रॉप है उससे उसका नुकसान भरपाई उसको मिल सकती है। मान के चलो कपास में बहुत सारे किसान तुअर लगाते हैं, कपास से हमें ज्यादा मुनाफा भी नहीं मिला, ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं मिला, तो तूर अगर हम लगाते 80:1 रेशियो में इंटरक्रॉपिंग करके, तो तूर हमें काफी अच्छा पैसा दे जाती है। तो ये फसल जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसमें इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है, तो यह किसान ने करना चाहिए, जिससे उसकी रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो या जो भी परिस्थिति हो, उसकी रिस्क कम होके उसे मुनाफा मिले। और पांचवी जो स्टेप है, ये हमें धैर्य रखना है, क्योंकि प्रकृति को जिस पैमाने पर हमने पिछले 30, 40, 50 साल में जिस तरीके से हमने उनका डिग्रेडेशन किया है, प्रकृति का, नेचुरल रिसोर्सेज का, उसे फिर से उसी चक्र में लाने के लिए थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए, प्रकृति को अपनी लय में और स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए। तो मैंने जो अभी ट्रेनिंग ली गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी, तो उसके ट्रेनिंग के विपरीत मुझे ये पता चला है कि नेचुरल फार्मिंग या सेंद्रिय खेती में 3 बातों पर अगर किसान गौर करता है, तो वह सही रूप से जो है तन मन धन से अगर वो सेंद्रिय प्राकृतिक खेती करता है, तो उसमें वो काफी अच्छा मुनाफा कमा सकता है और जो निसर्ग का है या नेचर का जो है बैलेंस है वो रख सकता है। तो पहला जो है उसको किसान लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, जो कि 3 साल उसको रखना है, किसान लोगों को पेशेंस, संयम रखना है।
दूसरा उसमें है कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साल प्राकृतिक खेती या सेंद्रिय खेती किया और दूसरे साल छोड़ दिया, क्योंकि उसके एक साल में जो अपनी लागत जो है वो तो कम होने वाली है, लेकिन जो उत्पाद है वो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि उसको फिर से अपनी लय में आने के लिए 3 साल उसको लगने वाले हैं, क्योंकि जो भारी पैमाने पर जो सूक्ष्म जीव है, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, उनकी जो संख्या भारी मात्रा में कम हुई है, उनको पूर्व पद पर लाने के लिए 3 साल का अवधि लगने वाला है। तो उनको संयम रखना है, उनको कंटिन्यू वर्क करना है 3 साल तक। और तीसरी जो अहम बात है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट किसान लोगों को लेना है, यानी उनको ज्यादा श्रम ज्यादा मेहनत इसमें करनी है। तो मान के चलो यहाँ पे निम्बोली अर्क हम बना रहे हैं या दशपर्णी अर्क बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें निम्बोली गोला करना है, वो झाड़ की पत्तियां 10 झाड़ के अलग अलग झाड़ की पत्तियां लाना है, उसको कूटना है, उसको उसका घोल बनाना है, उसका छिड़काव करना है। तो इसमें थोड़ा सा श्रम लगने वाला है, परिश्रम लगने वाला है। तो ये थोड़ी सी परिश्रमिक खेती है। तो संयम, सातत्य और एफर्ट जो है ये अगर लगाते हैं किसान, तो निश्चित रूप से 3 साल बाद हमारी खेती में जैसे हम जादू की कांडी घुमा के जैसे चमत्कार कर सकते हैं, तो वैसा ही चमत्कार हमारे किसानों के खेत में होने वाला है। लेकिन उसके लिए ये 3 जो बातें उस पर ध्यान देना किसानों ने जरूरी है। तो इसके लिए सरकार भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इसको समर्थन दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। तो हम अकेले नहीं है, सरकार है, उसके बाद में अलग-अलग जो विद्यापीठ है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनको ये जो अलग-अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रासायनिक खेती के दुष्परिणाम अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब बठिंडा से बीकानेर राजस्थान एक ट्रेन चलती है जिसे हम कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो वो कैंसर ट्रेन नाम कैसे पड़ा कि हमने देखा है कि जो हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो हमारे जो नॉर्थ के स्टेट है, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, तो इसमें ज्यादा पैना इस स्टेट में हुई। और वहाँ का जो उत्पादन है भात का हो, यानी राइस का हो, या व्हीट का हो, गेहूं का हो, ये काफी मात्रा में बढ़ा है। तो पंजाब के किसानों ने ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पाद लेने के चक्कर में उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो है रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उन्होंने वहाँ पे साल दर साल वो यूज करते गए। तो इसकी वजह से वहाँ की जो पूरी व्यवस्था जो है, वहाँ की जो पूरी परिस्थिति की जो है, इकोलॉजी जो है, वहाँ की जल जंगल जमीन, वहाँ का पूरा यानी पेड़ पौधे हो, भाजीपाला हो, फल की खेती हो, इवन गाय का दूध और माँ का दूध, ये भी इतने रसायन के उसमें अंश आ गए कि वो सब जहरयुक्त तो हो गए। और इसी की वजह से वहाँ पे कर्क रोग जो है, कैंसर का जो है, इतने सारे मरीज हो गए कि वहाँ से जो ट्रेन चलती है उसे हम कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो यह ना होने के लिए भारत सरकार भी बड़े अच्छी कदम यहाँ पे उठा रही है। जैसे हम PKVY जो है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो हमारे पूर्वज करते थे, वो नेचुरल फार्मिंग करते थे, और उसमें जो है 100% जो है जिससे हमें सेफ फूड हमें मिलता था। पूरे जो पोषक तत्व है, सब्जी हो या फल हो या हमारे अनाज हो, इसमें से पूरे 100% हमें सेंद्रिय जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने की वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती थी और हमें कोई भी रोग हमें छूता नहीं था। तो इसके लिए जो है परंपरागत कृषि विकास योजना, यह योजना जो है जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, सशक्त कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा, जैसे हमारे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जिसे हम बोलते हैं नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, तो वह चल रहा है। उसके बाद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। अभी पिछले साल में जो है 2024 में हमने देखा कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी आया है। आगे की स्लाइड में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग राज्य सरकारें जो है अपने अपने स्टेट में जो है प्राकृतिक खेती को और सेंद्रिय खेती को वो बढ़ावा दे रही है। तो यह सभी का अंतिम लक्ष्य क्या है कि प्रकृति का जो भोजन मंडल है, नेचर का जो फूड मंडल है, उसे हमें पैसे बचाने की तकनीक नहीं है, तो यह पृथ्वी को ठीक करने का एक अनुष्ठान है, यह एक माध्यम है। तो इसकी वजह से क्या आने वाला है, हमारे अंतिम लक्ष्य क्या है कि हमें स्वस्थ मिट्टी जो है हमारी करना है, जो कि आज हमारी मिट्टी जो है, मैंने बोला कि वह रोगग्रस्त है या वो ICU में है, तो उसे बाहर निकाल कर हमें उसे स्वस्थ बनाना है, रसायन से मुक्त बनाना है और जीवन से भरपूर बनाना है, क्योंकि मिट्टी ही जीवन का आधार है। अगर स्वस्थ मिट्टी रही तो उस पर स्वस्थ फसल उगने वाली है, जो भी फसल उस पर उगने वाली है वो स्वस्थ रहने वाली है, उसमें पोषण मूल्य भरी मात्रा में रहने वाले, उसका स्वाद, उसका कलर, उसका टेस्ट,
उसका जो हम बोलते हैं पूरा, तो वो नेचुरल रहने वाला है और उच्च पोषण से हमारी जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होने वाला है। तो ये तीसरी इसमें देख रहे हैं कि स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल होने वाली है और स्वस्थ फसल से मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ रहने वाला है और आध्यात्मिक से जुड़ाव उसका होने वाला है और रोग मुक्त जीवन हम जीने वाले हैं। तो हमने देखा कि फुकुओका की जो वन स्टोर रिवॉल्यूशन है, एक तिनके से ये क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित धरती हमें छोड़ना है। आगे की पीढ़ी हमको यह नहीं बताए क्या आपने हमारे लिए क्या पॉइजन वाला जो खाद है, पॉइजन वाला जो खेत है ये छोड़ा है, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें ये शुरुआत करने की जरूरत है। तो ये भारत में प्राकृतिक खेती का उदय जो एक संतुलित विश्लेषण थोड़ा सा इसमें हम जोड़ डालते हैं। ये हमने देखा कि हरित क्रांति की वजह से ये काफी जो है हमारी रासायनिक खेती जो है ये काफी पैमाने में इसमें बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह से हमारी लागत बढ़ी दिन ब दिन और हमारा जो किसान है वो ऋण के जाल में दिन ब दिन फंसता ही जा रहा है और कार्बन जो है मिट्टी का कार्बन वो दिन ब दिन उसका विनाश हो रहा है। तो इसके लिए समाधान ये है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है। तो ये मैंने अभी जो बताया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये पूरे देश भर में लागू है। इसमें लगभग जो है ये 2,500 करोड़ का यह कुल बजट इसके लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने हमारे रखा है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने। और इससे साध्य जो है हमारा लगभग जो है 18.19 लाख नामांकित किसान जो है, यानी उन्होंने उस पर नामांकन किया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है अपना। लगभग 18 लाख किसानों ने उस पर रजिस्ट्रेशन किया है। और इसमें हम जो है NMNF में, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत हम प्रति एकड़ जो है 4,000 रुपए प्रोत्साहन पर किसानों को अनुदान देते कि आप प्राकृतिक खेती से जुड़े। और ये 2 वर्षों के लिए देते, ज्यादा से ज्यादा 2 एकड़ के लिए देते। और इसमें जो है जो CRP है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसे हम कृषि सखी बोलते हैं, तो ये लगभग 34,000 कृषि सखी को हमने अलग अलग जो लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूट है, KVK है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इनके माध्यम से हमने उनको शिक्षित करके वह CRP या प्रशिक्षित कृषि सखी अपने गांव में जाकर 125 फार्मर के पीछे 2 कृषि सखी रहने वाली है और वो 125 किसान लोगों को वह प्रशिक्षित करने वाली है प्राकृतिक खेती के बारे में और सेंद्रीय खेती के बारे में। उन्हों वो बढ़ावा देके वहाँ पे वो ये अपना ग्रुप तैयार करके, गट तैयार करके इस ढंग से वहाँ पे प्राकृतिक खेती होने वाली है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि हमें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वह क्लस्टर स्तर पर हमें उसकी स्थापना करनी है। जो भी इनपुट लगने वाला है, जैव इनपुट लगने वाला है, मान के चलो जीवामृत है, बीजामृत है, दशपर्णी है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनस है, जो भी फंगल कल्चर हमें बनाना है, तो उसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, उसके लिए 5 लाख तक का अनुदान है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो गट है किसानों के अलग अलग, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, जो महिलाओं के बचत गट है, ये सभी उनका लाभ ले सकते हैं। और उद्देश्य क्या है कि जो किसान खुद जीवामृत नहीं बना सकते उन्हें मिशन मोड पे, क्लस्टर बेस पे, ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर में जो भी वहाँ पे इनपुट तैयार होगा वो क्लस्टर में देके वो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, उनको उपलब्ध करा के देना है। तो ये हमने देखा कि जीरो बजट का वास्तविक अर्थ जो है, तो उसमें शून्य लागत हमें लगानी है। बीज या खाद या जो भी हम इनपुट हम खेती में डाल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ लागत करने की जरूरत नहीं। जो भी है निर्भर रहना है हमें, 100% आत्मनिर्भर रहना है, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना है। तो हम प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 98.5% जो है वो प्रकृति का योगदान। पौधे अपने जो है पोषक तत्व जो है वो सूरज की रोशनी से और हवा के माध्यम से जो है वो ले लेते हैं, ये हमने साइंस में पढ़ा है। और मात्र 1.5% जो है वो सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, जो मिट्टी में अलग अलग मौजूद सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब जो काफी बड़ी संख्या में है, तो वो पौधों को जो भी हमारे पोषक तत्व है वो उपलब्ध कराने में सहायभूत है। तो ये हमने देखा है कि जो आधारशिला है, 4 मुख्य स्तंभ है, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। ये भी हमने देखा है कि स्वदेशी देशी गाय, ये हमारी खुद की चलती फिरती फैक्ट्री है। तो एक बात यह हमें प्राकृतिक हार्मोन जो है देसी गाय में, जैसे हमने बात की कि उसमें जिंक की बड़ी मात्रा में, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो भी बड़ी पैमाने में होते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स है अलग अलग, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, जो भारी मात्रा में पौधों को लगते हैं, तो ये हमारी देसी गाय में बड़े पैमाने पर ये पाए गए हैं। तो विज्ञान का कहता है कि देसी गोबर जो है वो उसकी श्रेष्ठता जो है
अगर हम बात करते हैं जो विदेशी और क्रॉसब्रीड एक्सोटिक ब्रीड है उसकी तुलना में हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो सूक्ष्म घनत्व है जिसमें माइक्रोबियल काउंट बोलते हैं सीएफयू कॉर्नी फार्मिंग यूनिट उसका यूनिट है तो ये सर्वाधिक लाभदायक जो है बैक्टीरिया का भंडार हमारी देसी गाय है और विदेशी गाय में औसत से बहुत कम है जिनका जो स्तर है जैसे पहले मैंने बताया ये 84% हमारे देसी गाय में ज्यादा है जो क्लोरोफिल बनाने में फल या फूल बनाने में सहायक होते हैं तो ये हमारे देसी गाय में ज्यादा है विदेशी गाय में और न्यूनतम है कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में उपलब्ध है और कृषि में उपलब्धता जीवामृत का ये मुख्य आधार है तो निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि देशी गाय केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक सिद्ध विज्ञान है जिसके बिना प्राकृतिक चक्र जो है वह टूट जाता है तो ये 36x36 का मॉडल है फलों का जंगल हमें बनाना है जैसे मैंने बात किया कि मल्टी लेयर कैनोपी हमें करनी है लाइव मल्चिंग करनी है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हमें हमारे किसानों को बनानी है जिससे वो सेल्फ सस्टेन हो सके इससे क्या होने वाला है कि निरंतर आय का चक्र जो है यानी पहले ही साल से जो है और 5 साल तक जो है और उससे भी ज्यादा दीर्घावस्था में हम या दीर्घावधि में हम आय ले सकते हैं और निरंतर रहने वाली है अगर हम देखते हैं कि पहले वर्ष में जो हम जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जिसमें सब्जी है मक्का है अलग दलहन वाली जो क्रॉप है तो वह उसका जो कालावधि 4-5 महीने का है वो लेके हम तुरंत हमारे जो परिवार की भोजन या मिट्टी के लिए आवरण त्वरित हम ले सकते हैं उसके बाद में 2 वर्ष से 3-4 वर्ष तक हम जो है 1 से 2 साल मध्यावधि में हम केला ले सकते हैं पपीता ले सकते हैं हम मोरिंगा ले सकते हैं तो ये क्रॉप लेकर हम स्थिर राजस्व हम ले सकते हैं जब तक मुख्य पेड़ बड़े हो जाते हैं यानी जो आम हो नारियल हो या चीकू हो या कोई भी फल फलदार वृक्ष हो वो जब तक बड़े नहीं होते हमें यह पता है कि 3-4 साल बाद ही जो है उसका जो प्रोडक्टिव लाइफ है फ्रूट्स का वो 3-4 साल बाद चालू होता है तो तब तक ये हमें जो अल्पावधि या मध्यावधि की जो फसल है वो हमें निरंतर रूप से आय का चक्र हमारा चलते रहता है और इसकी वजह से हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी कंजर्वेशन होता है और हमारे जो रिस्क है वह ये जो निरंतर चक्र है ये कम करता है किसानों की और मुनाफे में वृद्धि करता है ये दीर्घकालिक परिणाम अगर हम देखते हैं प्राकृतिक खेती का तो इससे मिट्टी का पुनर्जन्म होता है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करें तो मृदा का जो जैविक विज्ञान है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ये 3 साल में इसका नीति आयोग ने यहाँ यहाँ पे उन्होंने संशोधन किया उन्होंने अभ्यास किया तो 68% जो है मिट्टी के जो स्वस्थ यानी जैविक कार्बन जो है हमारा वो बढ़ा है 68.5% और हिमालय परीक्षण में मात्र 2-3 वर्षों में जो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में लगभग जो है 1% या 1.25% की उसमें वृद्धि हुई है और सूक्ष्म जीव विविधता की हम बात करते हैं तो रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती वाली मिट्टी में जलधारणा क्षमता बहुत यानी लाभकारी फंगस हो तो उसकी काफी बड़े पैमाने पर उसकी अधिक रूप से पाई गई है तो ये वास्तविकता की जांच थोड़ी सी हम कर लेते हैं कि लागत तो निश्चित रूप से घटती है पर उपज भी थोड़ी शुरुआत की 3 साल में यह घटती है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे उपयुक्त जीवाणु है उनकी संख्या पूर्ववत होने के लिए एक नेचुरल बैलेंस के लिए समय लगता है तो उसकी वजह से लागत तो घटने वाली है लेकिन उपज भी हमारी शुरुआती 3 साल में घटने वाली है लेकिन उसके बाद में निरंतर वहां बढ़ने वाली है यह आंध्र प्रदेश राज्य का अध्ययन है तो ये प्राकृतिक खेती हमने अभी समझ के लिए थी इसमें मुख्य बाधा है जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पे क्या क्या हमें आ सकती है तो इस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें तो यह थोड़ी सी जैसे मैंने बताया कि लेबर ओरिएंटेड इसमें हमें श्रम ज्यादा करना है अत्यधिक श्रम आधारित यह खेती है तो ये इसकी वजह से भी थोड़ा हमारे किसान लोग जो है इसके फोकस नहीं कर पा रहे जीवामृत बनाना है दशपर नियंत्रक बनाना है नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र या केचुआ खाद बनाना है तो इसको लेबर इंटेंसिव है और इसमें श्रम ज्यादा लगते हैं दूसरी बात है ये ट्रांजिशन लैग है संक्रमण का काल है और इसमें मिट्टी को रसायन से मुक्त होने में 3-4 साल लगते हैं उसी की वजह से जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है उसका 3 साल का टाइम पीरियड है तो ये संक्रमण काल की जोखिम है उसमें किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है तो वह सहन करने को हमारे किसान तैयार नहीं है इसकी वजह से भी प्राकृतिक खेती की ओर किसान नहीं बढ़ रहे हैं और तीसरी जो बात है अहम बात है कि प्रीमियम में जो मार्केट प्राइस है प्रीमियम प्राइस जो मिलनी चाहिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो वो एक अच्छा मार्केट जो है जो टोटली डेडिकेटेड हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए तो वैसे मार्केट हमारे इंडिया में या अलग अलग स्टेट में नहीं है मान के चलो सिक्किम या कुछ स्टेट उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर रही है लेकिन
फिलहाल जो है, तो ये जो प्रीमियम प्राइसिंग का जो मुद्दा है ये काफ़ी अहम है। तो ये किसानों को न मिलने की वजह से किसान प्राकृतिक खेती की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। एक नया खतरा है कृत्रिम बाजारीकरण, जिसे हम बोलते हैं कि कमर्शियल ट्रैप जो है, अलग-अलग जो ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है उसकी वजह से ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो लोकप्रिय हो ही रहा है, लेकिन अलग-अलग बायो फर्टिलाइज़र है, बायो पेस्टिसाइड है, वो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड के नाम से बेचे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा एक खतरा है। आगे का रास्ता ये है कि हमें एक मध्यम मार्ग निकाला, एक संतुलित मार्ग हमें निकालना है। रासायनिक ना कि रासायनिक खेती हमें करनी है, ना कि हमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगर हम कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि किसान के पास एक देसी गाय होनी ही चाहिए, तभी वह ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती कर सकता है। अगर उसके पास नहीं, तो इसका हम मिडल पाथ यह निकाल सकते हैं कि हमें रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना है और सटीक खेती हमें करना है, जिसे हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। सटीक खेती की यानी जो मात्रा में जो भी हमें इनपुट डालना है वो सही मात्रा में डालना है, ना कि कम ना कि ज़्यादा, उसे हम सटीक खेती करते हैं। तो इससे क्या होने वाला है कि पर्यावरण के क्षरण को हम रोकने वाली है और खाद्य सुरक्षा जो है हम ये बढ़ाने वाली है। तो यह भविष्य की टिकाऊ और सशक्त खेती खेती है हमारी, विजन 227। तो ये विशाल लक्ष्य है। जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इसमें एक मॉडल स्टेट करके उभर रहा है। उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ पे उनके स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन उसका किया है। तो प्राकृतिक खेती का उदय भारत के लिए एक स्थायी और समृद्ध रूप से जो है, ये कृषि शास्त्र अर्थशास्त्र का पुनर्निर्माण, पोषण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा है और पारिस्थितिक तंत्र का यह पुनरुच्चार है। इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स आया हुआ है। तो जैसे मैंने बात की कि मिट्टी का स्वास्थ्य मानव का स्वास्थ्य का आधार है, दोनों का उन्होंने इंटरेक्शन इसमें दिखा हुआ है। जो मानवीय हमारा शरीर है और मिट्टी का जो माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रो बायोम बायोम है, उ- उसका यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन है, कंपैरिजन कहाँ करके यहाँ पे बताया है। तो हम थोड़ा समराइज करते हैं। सर कंटिन्यू करना है मैडम? Please, you can continue ओके for your own choice. If you are willing to conclude, then you can also conclude the session. ओके ओके। तो फुकुओका का जो दृष्टिकोण है, जो हमने देखा, जो वन स्टॉप रिवॉल्यूशन उन्होंने की है कि बिना जुताई, बिना निराई, बिना रासायनिक उर्वरक और बिना कीटनाशक जो है हमें प्राकृतिक खेती करनी है, ये हमने देखा हुआ है। ये भी हमें पता है कि जो प्रकृति अपना सुरक्षा कवच जो है खुद तो तैयार करती है, और उसी के माध्यम से जो है अलग अलग जो 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 फसल पर आते हैं, पौधे पर आते हैं, अलग अलग फफूंद हो, वह प्रकृति उसको ठीक करती है। तो ये थोड़े मापदंड हम देख लेते हैं, पारंपरिक कृषि जो है हमारी रसायन आधारित और प्राकृतिक, और इसके बाद में हम हाँ, यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम पारंपरिक खेती बनाम प्राकृतिक खेती का अलग अलग मापदंड के आधार पर हम यहाँ पे तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि परिवर्तनशील लागत जो है पारंपरिक खेती में, जो है हमारी रसायन आधारित खेती में, वो हमने जैसे पहले चर्चा की, वो काफी ज्यादा मात्रा में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती में वो न्यूनतम है या जीरो है। उसमें उपज जो है वो दीर्घकालिक काम अगर देखते हैं तो शुरुआत में उसमें हमने देखा कि आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी बड़े पैमाने में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा परीक्षण करते, निरीक्षण करते, तो लगातार हमारी जो प्रोडक्शन है गिरावट होती जा रही है। अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो शुरुआत में यह स्थिर रहता है, कम रहता है, लेकिन निरंतर यहाँ बढ़ते जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है उपज के संदर्भ में। जोखिम और लचीलापन काफी ज्यादा है रसायन आधारित खेती में। प्राकृतिक खेती में ये अत्यंत सुरक्षित है, सभी के लिए सुरक्षित है। श्रम जो है इसमें कम है, क्योंकि हम जो है ये श्रम आधारित नहीं है रासायनिक खेती। हम रेडीमेड जो है बाजार से लाकर इसमें जो भी हमारी लागत है या जो भी इनपुट है ये डालते हैं। इसमें हमें खुद तैयार करना है, ऑन फार्म तैयार करना है। इसकी वजह से इसमें अधिक रोजगार सृजन है, और इनपुट तैयार करने में यहाँ पे श्रम ज़्यादा हमें लगने वाले हैं। और पर्यावरणीय प्रभाव की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान इसमें काफ़ी बड़े पैमाने में होता है।
यहाँ पे प्राकृतिक खेती की बात करें तो यहाँ सकारात्मक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसमें होने वाला है, मिट्टी और जल का संरक्षण इसमें होने वाला है। तो आर्थिक यथार्थ ये है कि कम लागत उच्च लाभ जो कि प्राकृतिक खेती में होने वाला है। कर्नाटक में एक केस स्टडी उन्होंने की है, जिससे उन्होंने बताया कि ये गन्ने की खेती का उन्होंने केस स्टडी या अध्ययन किया, और पारंपरिक खेती की लागत जो है लगभग 2,55,587 रुपये पर हेक्टेयर उनको लागत आई है पारंपरिक खेती में, और प्राकृतिक खेती में लागत कम हुई है, लगभग 30,000 से वह कम हुई है, 2,24,000 है। वैसे ही मक्के की खेती में जो उनका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, लागत अनुपात जिसे हम बोलते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। मक्के की खेती में जो है प्राकृतिक खेती से 2.14% से उनका बीसी रेशियो बढ़ा है। गन्ने की खेती में 1.92 का रिटर्न उन्हें मिला है। तो ऋण मुक्ति जो है, किसान महंगों कर्जों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो आत्मनिर्भर होने वाला है। ये हमारे विदर्भ के बीज रक्षक जो है, जिसे हम जैविक स्मृति का संरक्षण या जिसे हम सीड बैंक बोलते हैं, जो हम जैसे हमारे मंदाभाई गावड़कर जैसे किसान है, अमरावती के धामन गांव ब्लॉक के, उन्होंने आज तक जो है 121 प्रकार की फसल उगाई थी, आज केवल 21 ही बची है। तो हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी है दिन ब दिन कम कम होती जा रही है। ये थोड़ा केस स्टडी है। नागालैंड की झूम खेती हमें पता है, वह विनाश नहीं, वह पारिस्थितिक बुद्धिमत्ता है, जो कि वहाँ के जो लोकल फार्मर है उनकी वो नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको अनुकूल वो खेती कर रहे हैं। उसकी वजह से कम डिस्टर्ब हो रहा है, मैनेज कर रहे हैं वो डिस्टर्बेंस को। बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी बड़े पैमाने पर सुधार आया है, अद्भुत बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे दिखी गई है, और जलवायु परिवर्तन का खतरा भी कम हुआ है, क्लाइमेट थ्रेट कम हुआ है। ये आंध्र प्रदेश की वैश्विक जीत है, जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का खुद का मॉडल है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग सेंटर जो है या फाउंडेशन है, तो स्वीडन के एक फाउंडेशन है, उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट को वह पुरस्कार भी दिया है, लगभग $1.5 मिलियन का वह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनको दिया है। और विश्व का सबसे बड़ा कृषि पारिस्थितिकी आंदोलन है, जिसमें 1.8 मिलियन किसान जो है उससे जुड़े हुए हैं, और 22 राज्य जो है ये इसका आंध्र प्रदेश स्टेट मॉडल का यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, और लगभग श्रीलंका, जाम्बिया जैसे देश, वह भी देश इसका ये मॉडल अपना रही है। तो उद्देश्य है ये आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेशनल फार्मिंग का। तो 2047 तक, जिसे हम विकसित भारत, हम अभी विकसनशील है, तो हमें विकसित करना है 2047 तक। तो आंध्र प्रदेश को भी 100% जो है, जैसे हमारा सिक्किम राज्य है 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, वैसे आंध्र प्रदेश भी 100% नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर हो रहा है। तो उनका उद्देश्य है ये आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग का उनका मॉडल है, कैसे वहाँ पे काम चलता है। 18 लाख किसान उनसे आज की डेट में जुड़े हुए हैं, और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जो है CRP और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके माध्यम से ये पूरा मॉडल वह चला रहे हैं। तो हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जो है, कार्बन अवशोषण है, वाटर रिटेंशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, और ड्रॉट रेजिस्टेंस है। तो ये क्लाइमेट रेजिलेंट है। हम क्लाइमेट रेजिलेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट का हमारे खेती के ऊपर डायरेक्ट असर हो रहा है, और उसकी वजह से हमारी दिन ब दिन जो है किसानों की जो आय है, उत्पाद है, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। आगे की चुनौतियां जो है वो उसमें काफ़ी सारी बाधाएं आने की संभावना है। उसके लिए हमें समाधान के लिए जो है, ये जैसे इस संक्रमण काल में किसान जो है उसको वित्तीय हमें सहायता देने की ज़रूरत है, ऋण देने की ज़रूरत है। क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच से किसानों का हमें उनका विकास करना है। रोपों के लिए उनको हमें कुछ इंसेंटिव देने की गरज है। कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण स्तर पर हो, या सस्ती कोल्ड स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट वो मशीनरी उपलब्ध कराना देने उसकी ज़रूरत है। तो उनको शुरुआत में हमें, जैसे हम छोटे बच्चों को हमारी उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, वैसे ही हमें हमारे किसान को जो है उनको सस्टेन करने के लिए शुरुआत में उनको हमें मदद करने की ज़रूरत है। तो ये विजन 247 है, भारत के खाद्य तंत्र का कायाकल्प। उसके लिए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, हमें पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। अलग अलग योजनाएं जो है, जैसे हम PKVI बोलते हैं, NMNF बोलते हैं। हमारे स्टेट में पंजाबराव देशमुख ने से खेती मिशन जो है, जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख थे, अपने देश के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उनके नाम से हमारे स्टेट में 2000 करोड़ का जो है वह मिशन चल रहा है, पंजाबराव देशमुख ने से खेती मिशन। अभी वो NMNF में जो है उसको उसमें मर्ज हो गया है वो। और किसान का हमें एम्पावरमेंट करना है, और कंज्यूमर डिमांड जो है वो उनको जो चाहिए
वह हमें उन्हें देना है। तो इसके थ्रू हम हमारे विकसित भारत की संकल्पना जो है, यह केवल और केवल प्राकृतिक और सेंद्रीय या जैविक खेती के आधार पर ही हम कर सकते। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी बातें की है नैसर्गिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में। तो लास्ट में मैं 2-3 लाइन जो है, जो मैंने खुद लिखी है, तो उस पर मैं थोड़ा आपसे साझा करूँगा। मेरी 4 पंक्तियाँ हैं, जिसे फोर लाइन हम बोलते हैं कि कितना भयानक रहने वाला है, कितना भयानक रहने वाला है भविष्य में प्रकृति का चित्र, अगर सही समय पर हम अपनाए नहीं प्राकृतिक खेती को अपना मित्र, प्राकृतिक खेती को अपना मित्र। और एक दूसरी है, भविष्य में अगर हमें बचाना है, भविष्य में अगर हमें बचाना है, हमें हमारे इंद्रिय, जो हमारे पंचेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, इसे अगर हमें भविष्य में बचाना है, तो रसायन वाली खेती छोड़ के खेती करनी चाहिए, सेंद्रिय खेती करनी चाहिए। सेंद्रिय सेंद्रिय खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, ये फ्यूचर की डिमांड है। ये डिमांड जो है फ्यूचर की डिमांड है ये। और अभी लास्ट में जो है, ये जो मुझे मौका दिया है 21 दिन का, ये जो हमारा कृषि मंथन समर कैंप जो है 21 दिन का, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर जितेंद्र मेहता सर, जिनसे मैं जुड़ा, जिन्होंने मुझे यह मौका उपलब्ध कराया। उसके बाद में दिनेश कुमार सर, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, वह डॉक्टर निशा राणा मैडम, एफटेक एफटेक सोसाइटी, और सभी मेटल बायोटेक के टीम मेंबर्स, और जितेंद्र मेहता सर की पूरी टीम, और अलग अलग जो यूनिवर्सिटी जो इसमें सहभागी हुई है, तो सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हुए, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया। आभार के अब भार काहे को, आभार के अब भार काहे को, अब फूलों के हार काहे को, हृदय में बंधाएंगे घर, ऐसे घर को द्वार काहे को। सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। निशा राणा मैडम, यहाँ पे मैं मेरा सेशन समाप्त करता हूँ। ओवर टू यू। कुछ अगर इस रिलेशन में कुछ किसानों के या जो भी हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसान लोग हो, किसान भाई हो, उनके कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है, तो वो पूछ Thank, सकते हैं। ओवर thank you टू so निशा much, मैडम। sir, for such an informative session, which will be truly helpful for our students. So participants have raised their queries. तो कुछ queries है सर participants की। तो उन्होंने जनरली क्वेश्चंस पूछे डीएओ एंड बीएओ, लाइक गवर्नमेंट की पोस्ट जो है उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। डीओ डीओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। यस, यस सर। हाँ, मेरी जो पोस्ट है, ये जिला परिषद की एक पोस्ट है हमारा। स्टेट का कृषि विभाग अलग है, जिला परिषद का कृषि विभाग अलग है। स्टेट की तरफ बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारा जिला परिषद का जो कृषि विभाग है, उसमें मैं डीओ जो है, डीओ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए हूँ। जो स्पेशल कंपोनेंट यानी हमारे समाज में जो वंचित घटक है, जो शेड्यूल कास्ट के फार्मर है और शेड्यूल ट्राइब के फार्मर है, दोनों किसानों के लिए मैं मेरे डिपार्टमेंट की तहत जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, यह जो योजना है, ये एससी फार्मर के लिए, शेड्यूल कास्ट फार्मर के लिए, और जो हमारे आदिवासी किसान बांधव है, उनके लिए बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, जो आदिवासी के भगवान जिसे हम गॉड बोलते हैं, उनके नाम से बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, ये दोनों योजना यानी एससी फार्मर और एसटी फार्मर, इनके लिए मैं हमारे अमरावती जिले में उनको अलग अलग जो 12 घटक है, जिसको हम अलग अलग फैक्टर्स बोलते हैं, उसमें नई सिंचाई की वीर है, यानी वेल है, जिसको हम वेल बोलते हैं, वीर कुआं बोलते हैं, वो हम देते हैं, उसके लिए 4 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद में किसान के ऑलरेडी किसान का कुआं है, लेकिन वो गाल से वो बुझ गया है, उसकी पड़झड़ हो गई है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए 1 लाख रुपए हम देते हैं। उसके बाद में जो वाटर का सोर्स हमने तैयार किया है कुएं के माध्यम से, उसको ऊपर खींचने के लिए किसान को इलेक्ट्रिक मोटर पंप, डीजल पंप या सोलर पंप, इसके लिए हम 40,000 50,000 रुपए देते हैं। 40,000 हम डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन के लिए देते हैं, और 50,000 हम सोलर के लिए देते हैं। उसके बाद में वो जो पानी है मोटर से हम खींच रहे हैं, वो उसके खेत तक लेके जाना है, पेड़ तक, पौधे तक लेके जाना है किसान को, तो उसके लिए हम एचडीपी पीवीसी पाइप, उसके लिए 40,000 रुपए देते हैं। उसके बाद में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए हम ठिबक और तुषार के लिए, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन के लिए हम 10% 15% हम पूरक अनुदान देते हैं, टॉप अप सब्सिडी देते हैं। यांत्रिकीकरण के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है हमें टाइम पर मजदूर नहीं मिलते खेती के अलग अलग काम करने के लिए, तो हम यांत्रिकीकरण के तहत हम जो भी ट्रैक्टर चलित या बैल चलित जो भी हमारे यंत्र औजार है, उसके लिए हम 50,000 रुपये देते हैं। तो ये सारी जो कंपोनेंट है, हम दोनों घटक के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू सो मच सर।
तो एक और क्वेश्चन है सत्यम कुमार जी का। वो पूछ रहे हैं मिट्टी क्यों लेते हैं बरगद के पेड़ के नीचे से, और इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, किसी रेस्पेक्टिव किसी स्लाइड के रिगार्डिंग शायद इन्होंने पूछा है। नहीं, उसे क्लॉकवाइज घुमाना है दिन में 2 बार, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ियां मेरी चलती है लेफ्ट टू राइट, तो वैसे ही हमें जो है दिन में 2 बार जो भी हमारा जीवामृत और बीजामृत हम तैयार करने वाले हैं, तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें घुमाना है। ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, संगीता जी पूछ रही हैं कि नागपुर में वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट के, अगर कुछ हैं हम्म। तो आप प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। नागपुर में एक सेंटर है अपना, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आरसीओएफ। जो हमारा नेशनल का सेंटर है वो गाजियाबाद में है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वो गाजियाबाद में है। लेकिन जो रीजनल सेंटर है हमारे नागपुर में है, तो वहाँ पे ये अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफ़ी संशोधन हुआ है। वहाँ पे वेस्ट डिकम्पोजर जो गाजियाबाद में तैयार होता है वो भी यहाँ पे मिलता है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वहाँ के जो वो संस्थान है वो चलाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे बात कर सकते हो सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच सर। सत्यम कुमार जी का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। हाँ, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमें जो खेत है किसान का, वो खुद खेत का सर्टिफिकेशन होता है। उसके लिए किसान को जो है जो भी वो यूज करने वाला है, उसमें तो पहली बात तो ये है कि केमिकल हमें एक दाना भी केमिकल का हमें यूज नहीं करना है पहली बात खेत में। जो भी वो बीज डाल रहा है, जो भी बीज बो रहा है, जो भी वो जैविक खाद डाल रहा है, जो भी वो प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो भी वो हथियार यूज कर रहा है, मशीनरीज यूज कर रहा है, ये सब का उसे रिकॉर्ड रखना है किसान को। और इसके जो है ये रिकॉर्ड रखने के बाद में उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होने वाला है। इसके लिए अलग अलग प्रमाणीकरण की जो संस्थाएं है, जैसे इको सर्ट है, इंडो सर्ट है, और जो भी थर्ड पार्टी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो उनके माध्यम से उनके खेत की जो है वो वहाँ पे उनका इंस्पेक्शन होने वाला है, रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन होने वाला है। जो भी फसल उसमें उग रही है, मान के चलो वहाँ पे मिर्ची है, वहाँ पे टोमेटो है, वहाँ पे भिंडी है, तो उसका लैब में भी उसका टेस्टिंग होने वाला है कि इसमें कोई रसायन के कोई अवशेष है या कुछ है। तो ये सब करके ऐसे 3 साल की प्रोसेस उसमें लगने वाली है। लगातार 3 साल वो किसान को या वो ग्रुप को जो है, ये गट का भी हम दे सकते हैं या इंडिविजुअल किसान को भी हम प्रमाणीकरण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 3 साल का पेशेंस पीरियड है। इसी के लिए है कि किसान को 3 साल रसायन का एक भी उसमें अंश नहीं डालना है एक। और इसका सब रिकॉर्ड इंस्पेक्शन होके जो भी थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण संस्था एजेंसीज है, वो उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन उसे उन्हें इशू करती है। अगर वह सर्टिफिकेशन किसान के पास रहता है, तो वो इस जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, वो आंख मूंद के उनका प्रोडक्ट वह ले लेगा, और उसको 1.5 या 2 गुना भी उनको भाव मिल सकता है। तो इसके लिए 3 साल का अवधि लगने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में रिकॉर्ड कीपिंग करना है, बाद में वो रिकॉर्ड का ये इंस्पेक्शन करवाना है, उसके बाद में सर्टिफिकेशन। तो ये 4 प्रोसेस में किसान का या ग्रुप का जो है ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उनको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर। अंकित कुमार सिंह की क्वेरी है कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम्म। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हम्म। तो कैसे प्रिपरेशन करें और बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए क्या हो सकता है। बीटेक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। हाँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हैं गवर्नमेंट जॉब ओके। के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशली। ओके ओके। अभी हमारे स्टेट में जो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, तो हमारा अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो ये है, हमारा एक महीने अलग अलग छः छः हमारे विभाग है, 6 विभाग है। महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें एक्सटेंशन है, देन उसमें हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग का अलग यूनिट है, उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल निविष्ठा जो भी इनपुट है उसके गुण नियंत्रण के लिए। और अभी एक नया हमने डायरेक्टर लेवल का एक ऑफिसर जो वहाँ पे डिप्यूट किया है। और अलग जो है कृषि अभियांत्रिकी जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वहाँ सेपरेट किया हुआ है, उसके लिए सेपरेट डायरेक्टर है। और वहाँ पे जो भी कर्मचारी या अधिकारी डिप्यूट होने वाले हैं, उसके लिए 60% जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फील्ड से हो, और 40% सिविल इंजीनियर। जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो भी हमारा अलग से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किया हुआ है, उसके लिए जो भी वर्कफोर्स या मैन फोर्स लगने वाला है, तो उसके लिए 60% एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले वहाँ पे लगने वाले हैं, और 40% सिविल इंजीनियरिंग। और दूसरी बात ये है कि मैं जो भी स्टूडेंट लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, उनको यहाँ मैं सलाह दूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी कीजिए।
उसमें जैसे मैं शुरुआत में एग्रीकल्चर असिस्टेंट था 2004 में, और 3 साल मैंने एग्रीकल्चर असिस्टेंट करके नौकरी की। उसके बाद में हमारा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी जो है उसके थ्रू ऐड आई, और उसमें मैंने क्या ने सब कुछ मुमकिन है, खाली हमें जो है ये हमें उद्देश्य रखना है, उस उद्देश्य पर हमें चलना है, हमें समय देना है, और मेहनत करनी है, और प्रामाणिक यानी जिसे हम बोलते हैं तन मन धन से, उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं या कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई पोस्ट निकाल ही लेंगे। सर एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। तो ये हाँ। एडीओ बनने के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब प्रोसेस क्या है, स्पेशली प्रोसेस कर जानना चाह रहे हैं। एडीओ एडीओ के एडीओ 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 सर, एडीओ। एडीओ, हाँ एडीओ माने तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जो जैसे मेरे बॉस एडीओ है, यानी हमारे जिला परिषद कृषि विभाग के वो हेड है मेरे डिपार्टमेंट के। तो उसके लिए हमारी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यह क्लास 1 की पोस्ट है। जो एडीओ है कृषि विकास अधिकारी, उसके लिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है जो भी वैकेंसीज है, तो वह 60% हमारे स्टेट में वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एमपीएससी थ्रू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रू, और 40% जो है वो प्रमोशन से आते हैं क्लास 1 के जो ऑफिसर है। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना जरूरी है। सत्यम कुमार, थैंक यू सो मच सर। सत्यम कुमार का क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के नीचे से ही मिट्टी क्यों लेते हैं। हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे जो है अभी हम देखते हैं कि बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ये काफी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ का जो पूरा जो इकोसिस्टम है बरगद के पेड़ के नीचे का, अगर आप देखते हो तो वो काफी रिच रहता है। वहाँ की माइक्रोब्स की संख्या काउंट अगर आप देखते हो बरगद के पेड़ के नीचे की, और हमारे ओपन फील्ड की मिट्टी आप लेते हो और उसकी जांच अगर करते हो, तो उसमें काफी बड़े पैमाने पैमाने में जो भी यूजफुल माइक्रोब्स है वो बरगद के पेड़ के नीचे। क्योंकि बरगद का पेड़ क्या रहता है कि वो घना रहता है, और जो छाव रहती है, छाव की वजह से वहाँ पे जो पत्ते गिरते हैं और उस पर जो बारिश गिरती है, वहाँ पे उसका जो हम बायोडिकम्पोजिशन बोलते हैं वो ज़्यादा पैमाने पर बरगद के पेड़ के नीचे होता है, और उससे माइक्रोब्स की संख्या काफ़ी बड़े पैमाने में बढ़ती है। और उसी की वजह से हम ये सुझाव या ये सलाह देते हैं किसानों को कि बरगद की पेड़ के नीचे की मिट्टी हमें यूज़ करना है। जो हम बोल रहे थे कि 10वें दिन काफ़ी यानी दुगना या काफ़ी बड़े पैमाने पर जो जीवाणुओं की संख्या है या सूक्ष्म जीवों की संख्या वो बढ़ती है। अगर बरगद का पेड़ की मिट्टी हम लेते तो वो छठे सातवें दिन में हमें वो काउंट मिल जाता है। तो इसीलिए बरगद की पेड़ की मिट्टी लेनी है हमें। माइक्रोबियल थैंक यू काउंट सो ज़्यादा मच रहती सर। है, उसकी वजह से लेनी है। Thank you so much, sir, for the detailed deliberation. I think it was very, very helpful for us, and students have raised their query. I hope all are satisfied. Thank you so much, sir, for the detailed deliberation. थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र मेहता सर, दिनेश थैंक यू कुमार सर, सर, बहुत निशा अच्छा राणा आपका मैडम आपका। लेक्चर रहा, Thank you अच्छी so अच्छी much, sir. जानकारी मिली। इवन आज स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि कैरियर रिलेटेड गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिली है, तो उन लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली वो लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जो भी कॉम्पिटिटिव की सर तैयारी कर रहे आपकी हैं या आपकी फर्स्ट एग्रीकल्चर। आपकी फर्स्ट स्लाइड शेयर कर दो, उसमें लिखा हुआ है आपका हाँ हाँ नाम। हाँ हाँ, फर्स्ट एड, यस 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 यस। उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। ओके ओके ओके। हाँ, ये दोनों नंबर है मेरे। ये जो 8788 वाला ये कॉलिंग का है, और दूसरा जो है बीएसएनएल का 9421 वाला वो व्हाट्सएप नंबर है। तो सर थैंक यू सो मच। आई होप सब लोगों ने आपका नंबर नोट डाउन कर लिया होगा। ये आज का सेशन वाकई में बहुत हेल्पफुल था उन सभी स्टूडेंट के लिए थैंक जो यू। स्टूडेंट डोमेन एग्रीकल्चर साइंसेज से हैं, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जिनको करियर गाइडेंस भी चाहिए। यस तो यस सब्जेक्ट के बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करियर गाइडेंस के लिए भी उनको चाहिए ये वाली हेल्प, क्योंकि ये वाली गाइडेंस जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग हैं उनसे मिलने से डायरेक्शन मिल जाती है एक। बराबर। के लिए थैंक यू सो एक मच। सही दिशा डायरेक्शन की जरूरत होती है। अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए एक सही दिशा होना जरूरी है। हाँ जी सर, वो भी ऐसी सही दिशा होती है तो इंसान पहुंच ही भटक जाता है जाता है। मंजिल तक। हाँ, तो भटक जाता राह हाँ में, मंजिल हाँ तक नहीं पहुंच पाता है। अगर सही आप बात है।
गोल ओरिएंटेड हो तो डेफिनेटली आप लोग कैसे नहीं कैसे पहुंच ही जाएंगे। Yes. थैंक यू सो मच Thank for you, madam. enlightening us. Thank you, sir. Now, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and propose a vote of thanks. On behalf of organizing committee, institution, I extend sincere thanks to the speaker, Mr. Nilesh Shankar Rathore, Dr. Jiten Mehta, the President AFTEFS Society, our organizing universities, Rani Lakshmi Bai Central Agriculture University Jhansi, University of Agriculture Sciences Raichur, Swami Vivekanand Subharti University Meerut, GD Goenka University Gurugram, संत गिरिराज गुरु विश्वविद्यालय एंड इंस्टीट्यूशन AFTEFS Society and Vital Biotech Education Group, faculty members and experts, our technical support team, our research scholar and student, those who have joined, and all the participants, those who have joined from different part of the country. Your presence has made this technical session to well. With this, we conclude day 12. All the participants are requested to please join tomorrow at 6 p.m. Wishing everyone a productive, enriching, and successful 21 days Krishi Mandal Summer School Training Program. Stay connected and keep learning. Thank you so much. Jai Hind to all. Jai Hind. Namaskar. Namaskar.